Some professionals walk the journey, and then there are some who build the road as they walk it. Joining us today is someone who has carved his own path, blending numbers with narratives and tax codes with storytelling. Please welcome CA Ronak Bankasar, a powerhouse of knowledge, clarity, and creativity. With over 3.5 years of experience in consulting, he has led audits, simplified GST, authored insightful articles in Taxman, and spoken at prestigious forums across Mumbai. But that's just scratching the surface. Sir has interviewed over 200 entrepreneurs, turning their stories into inspiration for thousands through the startup tales. He has also even co-authored a book named Pratikshit. Moreover, Sir also runs a podcast named Chat with CA Banka and also is currently pursuing his MBA from Symbiosis. In short, he is not just a chartered accountant. He is a storyteller, a guide, and a game changer. Let's get ready to unravel his journey and maybe find a little bit of our own path in it too. So now I would like Bhavesh and Shivani to take over. Yes, thank you, Ajinkya. Thank you so much. Thank you, Gaurav. Sorry. Thank you so much. Sir, before we dive into a serious talk, how would you define CA? I mean, the degree, the Chartered Accountancy degree. How would you define it? What importance does it hold in your life? So, firstly, thank you to the Winner Circle for inviting me, and the introduction was very nice. So, thank you for that. Coming to your question, how would I define CA? CA is life, I would say. The reason being, I come from a family of chartered accountants, and I was never inclined to do CA, to be very frank with you all. And things happened, and फिर मेरा CPT clear हुआ, then IPCC clear हुआ. I got stuck in the CA final thing, but those two got cleared very easily. And then it was like, I have to do CA. And I actually realized the worth of being CA after being started accountant. Also, one more thing I would like to add, I have seen the importance of degree CA in my life because my family had gone through some financial issues 12, 10, 15 years back. And that degree helped us a lot of my father. So that's the reason CA, I feel, is life. So, sir, my second question would be, what made you say this is why I chose to be a CA? This is, see, मैंने जो बोला financial incident जो हुआ था, that was one of the thing. But as I mentioned in the first question, I never wanted. It was just कि मतलब 12th के बाद क्या करे. मुझे तो मन था जर्नलिज्म करने का. मेरी मॉम इनफैक्ट काउंसलर के पास भी गई थी, करियर काउंसलर के पास. तब आया था मेरे करियर काउंसलिंग में इवेंट मैनेजमेंट. हमने लॉ भी सोचा. फिर मेरी बहन बोली अभी सीए कर ले. लिटरली ऐसा ही हुआ था हमारे यहाँ. मेरी खुद की रियल सिस्टर जो एल्डर सिस्टर है वो खुद एक सीए है एंड हमारे में बहुत एज गैप है. तो शी वाज लाइक अभी रौनक तो सीए कर ले. तो वही था कि बस मैं फ्लो में करते गया. लिटरली वो फ्लो में हुआ. मतलब सीपीटी और आईपीसीसी तो वो फ्लो में हुआ. फिर जो मेरे को बाद में जो खड़का है ना, वो खड़का है सीए फाइनल. Yes, yeah, the journey sounds easy, but deep down we all know that this isn't easy at all. Everybody it has is their own not at share of all efforts. easy. It is not at all easy actually. Everybody has their own share of efforts Correct. which go down in it. So I'd like now to Shivani to take over. So sorry. No So my worries. question would be, how do I become a speaker when I'm afraid to share my thoughts with someone? How can I do this during my CA journey, like gain confidence or be it something else? Okay, very good question. तो मैंने जो startup page चालू किया था during my CA journey only I started. Like you guys are actually doing the winner circle. I had started off the startup tales in the year 2017. I was in my first year of articleship. Like my first year of articleship was gonna just complete that time. Okay, and I started off with that, and वो ना चलते गया.
because I like public speaking a lot. मैं मतलब बचपन से I used to do, schools में भी मैंने बहुत किया है, तो I like it a lot. तो वो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होते गया एंड लकीली मेरे फर्म में भी काफी सपोर्टिव थे. इट वाज नॉट दैट कि आई यूज्ड टू मिस एनीथिंग और आई यूज्ड टू गो टू. जो इंटरव्यूज होते थे वो तो ईमेल्स पे हो जाते थे. बहुत हार्डली मैंने कोई वीडियो इंटरव्यू लिया होगा, वो भी जो लिया होगा ना वो कोविड टाइम्स में लिया था. तो अपने आप वो होता गया. लाइक आई यूज्ड टू इंटरव्यू एंटरप्रेन्योर्स. इनफैक्ट मैंने पता है ये अनंत लट्ठा जी जो है ना, जो इन्फ्लुएंसर है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, उनका मेरे पास 2020 में ईमेल भी आया था कि उनको इंटरव्यू मतलब ही वांट्स टू गेट फीचर्ड ऑन माय पेज. बट तब मैंने उतना ध्यान दिया भी नहीं था एंड मैं तब अपने सीए फाइनल के जोन में जा चुका था. तो आफ्टर 2020 तो मेरा पेज उतना वो स्प्रेड हुआ ही नहीं. मैंने खुद नहीं उतना नहीं किया बिकॉज मेरे घर में भी था कि नहीं नहीं सीए करना है, सीए करना है. एंड इनफैक्ट आई हैव इंटरव्यूड, मतलब मैंने अभी इंस्टाग्राम पे तो काफी पोस्ट आर्काइव कर दिए, बट मैं वापस से वो कर दूंगा, मतलब एक्टिवेट जो बोलते हैं वो मैं कर दूंगा. बट इट वाज लाइक आई हैव इंटरव्यूड लाइक अंकुर वारिकू का भी एक पोस्ट होगा, आई गेस उनका पोस्ट होगा जून 2017 या 2000 जुलाई 2017 में, ऐसा उनका पोस्ट था. मैं बताता हूँ, एक पोस्ट ना मेरा ये था, कुणाल कपूर जो एक्टर है, जो एक कीटो फाउंडेशन का जो आता है, वो मेरा पोस्ट उस समय काफी वायरल चला गया था. लिटरली इट वाज वेरी वायरल. तो मेरा फेसबुक पे तब के जमाने में फेसबुक बहुत चलता था, अब तो नहीं चलता उतना. तो मेरा फेसबुक पे बहुत वो हो गया था. लाइक आई वुड से एक दिन में मेरे 400 लाइक्स हो चुके थे. लाइक्स, हाँ फेसबुक पे लाइक्स बोलते हैं. तो मेरे लाइक्स हो गए थे. तो वो धीरे धीरे ना वो होता गया. तो वो मेरे अंदर पहले से है कि मेरे को कुछ करना है. तो वो इंस्टिंक्ट्स है, दैट कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली कम्स इन. Actually, sir, I totally agree with what you said. So the my next question is, how has the CA curriculum or the landscape of the profession evolved in the recent years, and how do you advise students to adapt to these changes? So CA curriculum तो यार it has evolved a lot. Like I remember my sister के time it used to be P2 P1. Then my time it came as CPT, IPCC, and CA final. And CPTP it was MCQ. Now the I guess it is all like CPT maybe it's now CA foundation, and it is like 2 subjects MCQ and 2 subjects theoretical, right? Something sort of that is there. It has evolved a lot, and 2022 या 23 में जो CA का पैटर्न चेंज हुआ था about studies and everything, तो it has also evolved on the new educational policy जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था. इनफैक्ट नाउ इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज क्या है ना, आजकल हम लोग को ऐसा जो ऑलरेडी सीए बन चुके हैं, अभी तो क्या आप लोग को ओपन बुक एग्जाम्स भी हो रही है. आई नो ओपन बुक बहुत डिफिकल्ट होता है, वो बोलने में बहुत इजी है. ओपन बुक इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसमें. तो आई नो ओपन बुक एग्जाम्स और ये सब भी हो रहा है अभी. हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. इनफैक्ट मेरा तो टाइम, मतलब हमें तो ऐसे ही करना था, वो पूरा पेपर्स था. अब तो 2 सब्जेक्ट्स कुछ आप लोग को कॉस्टिंग या लॉ या कुछ कॉस्टिंग या एक और कुछ सब्जेक्ट वो भी हो गया ना कि आप लोग को पहले ही एग्जाम दे देना है उसका ऑनलाइन बैठे बैठे. SPOM में दे देना उसको. SPM, sir. हाँ. सो नाउ इट इज मोर इंटरेस्टिंग टू सी कि वो हमें ऐसा, एंड अभी तो 3 बार एग्जाम होने लगी. तो टू अस जो ऑलरेडी सीए बन चुके हैं, तो हमें अब लगता है वो सीए की वैल्यू ये लोग खत्म कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं. बट seeing you all, it would be more, you guys will justify कि वो कितना वैल्यू दे रहा है अभी सीए कोर्स. Of course, institute में जो करते हैं, of course, there are like president sir and everyone is sitting. They are very well qualified than what I am over here. So they must have thought something good and they must have, started with it. But now we want to see from you guys कि वो मतलब वो difficulty level वो कितना बढ़ाते हैं, क्या है. बट अब आई गेस तभी सीपीटी सीए फाउंडेशन काफी डिफिकल्ट कर दिया है. लाइक 5% ही डिफिकल्ट हो गया है. दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट. क्योंकि क्या होता है, हम सीए फाउंडेशन तो पास कर देते थे, अटकते थे आईपीसीसी फाइनल में.
अभी जब उसी को डिफिकल्ट बनाएंगे ना, तो अ स्टूडेंट विल बी लाइक कि अगर यार नहीं हो पा रहा है तो लेट मी शिफ्ट टू द अनदर थिंग, अनदर कोर्स। तो टाइम उसमें ना उतना वो उसका और चीज में कुछ आई वुड से इन्वेस्ट होगा रादर देन इसी कोर्स में रहे। ऑफ कोर्स इस कोर्स की वैल्यू इज लाइक ऑप्टिमम। बट मैंने ना एक पॉडकास्ट किया था विद सीए यश गाड़िया सर। वो कॉस्टिंग और एसएफएम शायद पढ़ाते हैं, एएफएम अभी हो गया, हाँ। तो वो मुझे बता रहे थे अपने ही स्टूडेंट्स का वो बता रहे थे, दैट पॉडकास्ट इज देयर ऑन यूट्यूब आल्सो, कि यू नो कि 30-31 की एज में भी लोग सीए बनते हैं। वी ऑफ कोर्स सॉ इस बार का जो सीए फाइनल रिजल्ट था, जयपुर से एक जो सर थे वो अब जाके सीए बने हैं, ही ट्राइड नाउ, एंड ताराचंद जी अग्रवाल अंकल, Yes. तो अब Yes. जाके सीए बने। ऑफ कोर्स दैट इज अ डिटर्मिनेशन, वो तो उनकी मतलब विश था कि उनको सीए करना है। बट अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी भी सीए के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, लाइक 29, 30, 31 के हो गए। तो आई हैड आस्क्ड देम अ क्वेश्चन कि इज इट वर्थ इट टू डू? बिकॉज क्या होता है ना, हम कर तो देते हैं बट फिर उसके बाद हमें वो जॉब अपॉर्चुनिटीज में उतना पे पैकेज मिले ना मिले। ही वाज लाइक इट वाज नॉट वर्थ इट टू डू बिकॉज आपने काफी टाइम इन्वेस्ट कर दिया, आप कुछ और चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, और आजकल बहुत कोर्सेज आते हैं। तो सीए आई वुड से वो तो करना ही है, बट अगर हमें ज्यादा टाइम लग रहा है ना, तो मे बी वी कैन थिंक ऑफ टू ड्रॉप इट ऑफ एंड आप कुछ और करो, सो दैट क्या होता है ना, वो बहुत नेगेटिविटी और वो हो जाता है। सी आई एम वेरी मच एडवोकेट, इनफैक्ट अगर आपको कोई फ्रेंड होगा वो मेरे डैड के पास भी जाएगा ना कि क्या करना है, वो अगर साइंस बैकग्राउंड का भी होगा वो बोलेंगे कि तू सीए कर। तो मेरे घर में तो सीए का तो बहुत चीज है, लाइक माय फैमिली इज क्रेजी अबाउट बीइंग सीए, एंड इवन आई वांट पीपल टू बिकम सीएस, एंड इसलिए आई काउंसिल पीपल टू दैट ये सब चीजें करे सीए बनने के लिए। सो आई वुड से कि सीए हैज इवॉल्व्ड अ लॉट from what it was to what it is now. I started off with CA in 2015, तो 2014-2015 से ही अब तक काफी इवॉल्व चेंजेस हुआ है, and it is great to see that. So, sir, can you tell us a bit more about your page, the Startup Tales, and how did you start it? Okay. So see, Startup Tales, I had started off in 2017, ठीक है? And अब वो पेज उतना एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब इनफैक्ट अगर कोई लिंक्डइन पे ढूंढना चाहे ना, लिंक्डइन पे मैंने 2-3 पोस्ट ही डाले थे, मेजरली इट वाज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आई हैड स्टार्टेड ऑफ, सो आई वुड से अ स्टोरी, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे जो है हमारा इंस्टाग्राम पे, इट इज लाइक जो रेगुलर लोगों को लेके एंड उनकी स्टोरीज डालते हैं, तो आई वांटेड टू बी समथिंग लाइक दैट। तो मैंने अपना ऐसे ही मेरा 20th बर्थडे था, तो आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट समथिंग, कुछ करते हैं ऐसा सब। तो इसलिए मैंने वो पेज स्टार्ट किया था, एंड आई जस्ट रैंडमली मेरा जो फर्स्ट स्टोरी था, आई रिमेम्बर इट वाज अबाउट अ लेडी हु हैड स्टार्टेड अ वाइन का स्टार्टअप, रिदम बाइनरी शायद नाम था। तो इट वाज जस्ट अ रैंडम, मैंने लोगों को ना मैसेजेस किए थे, एंड दीज कोल्ड मैसेजेस वर्क अ लॉट, ठीक है? तो मैंने लोगों को मैसेजेस किए थे कि आई एम स्टार्टिंग अ पेज, एंड उस जमाने में ना वो कॉन्सेप्ट बहुत नया था। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत आउटडेटेड हो चुका है, बट 2017-18 में दिस कॉन्सेप्ट वाज वेरी न्यू। तो आई हैड मैसेज पीपल एंड दे वर लाइक प्रीटी मच ओके विद इट। तो आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद इट। आई यूज्ड टू पोस्ट स्टोरीज, आई गेस हफ्ते में 2 या 3 पोस्ट में पोस्ट करता था, लिखता था, एंड आई यूज्ड टू डू आफ्टर आर्टिकलशिप, घर जाने के बाद या ट्रैवल करते समय, क्योंकि मैं क्या करता था ना, आई यूज्ड टू सेंड पीपल, मैं 2 तरीके से इंटरव्यू लेता था। either I used to email them a set of 5-6 questions, or I used to call them telephonically and then I used to write the answers, and उसके बेसिस पे ना मैं स्टोरी बना रहा था। अभी आप लोग से एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है उस जमाने में चैट जीपीटी या जेमिनाई नहीं था। तो अभी मैं अगर वो उनके क्वेश्चंस कोलेट करके चैट जीपीटी या जेमिनाई पे डाल देता तो और अच्छी स्टोरी बन जाती, नो वरीज। तो मैंने ये सब चीजें स्टार्ट की थी,
एंड स्टार्ट करते करते यार चलता गया देन मैंने कोविड के टाइम पे मैंने ऑनलाइन इंटरव्यूज का किया था कि ऑनलाइन वीडियो कॉल्स मतलब वीडियो इंटरव्यूज लिए थे एंड या सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ऑफ विद इट नाउ तो आई एम with my job I'm doing chat with CA Banka which is my own podcast so I started off with it like last year मैंने किए थे 2-3 podcast on Zoom then I start in fact Pinky ma'am which we were discussing now उन्हीं का मैंने first on-site podcast भी किया था so yeah so that's the thing I do during weekends and yeah so after office hours yes. So, sir, my next question is how would you document your learnings during your journey? I mean, and what was your most interesting, like one of the interesting incident when you interviewed around 200 plus startup founders, Yeah, entrepreneurs? interesting incident I find. How would I document? To document my CA journey or okay, CA journey. I So would say the learnings during your learnings. journey. Okay, हाँ, Yeah. learnings. Since you are since you guys will be appearing for CA final. One thing. So my parents used to say me, CA final में ना कभी portion complete नहीं हो पाता. It is difficult to complete and हमें क्या करना है मैंने आर्टिकलशिप से मेरा नवंबर अटेम्प्ट था सो मैंने आर्टिकलशिप से छुट्टी लिया था फ्रॉम 1 जून मेरा चालू हो गया था ठीक है 1 जून से 1 अक्टूबर जो 5 महीने का लीव होता है मैंने पूरा सोशल मीडिया और सब बंद करके आई यूज्ड टू बी सिटिंग इन माय ओन रूम एंड आई यूज्ड टू बी स्टडिंग माय पेरेंट्स यूज्ड टू टेल मी आल्सो कि तू कहीं बाहर जा या कुछ कर बट नहीं मेरे को तो रैंक लाना है मुझे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना ही है कैसे भी तो पढ़ते रहो बाद में जाके ना अक्टूबर में मैं इतना ड्रेन्ड आउट हो चुका था मैंने खुद इंस्टाग्राम फेसबुक ना मैं वो ब्राउजर से खोलता था क्योंकि मैं इतना बोर हो चुका था करते करते तो ये मैंने एक जर्नी सी आई वोंट देयर आर मेनी प्रोफेसर्स एंड मेनी पीपल टेल कि सोशल मीडिया नहीं यूज करना चाहिए what I personally feel is बोलते सब लोग हैं लाइक मेरी खुद की स्टोरी है या दूसरे सर्स की या दूसरे प्रोफेसर या सबकी अलग अलग स्टोरीज है इट इज लाइक आपको जो आपके लिए सूटेबल लगता है ना वो करना चाहिए ना कि जो दूसरे लोग बोलते जाए बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ अगर आप लोग कोई फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक तक को लोगे वो ऑफकोर्स वो उनके एक्सपीरियंस एंड विच विल बी मोर मच more useful for all of you तो वो वैसे टाइप के अपने एक्सपीरियंसेस बोलेंगे बट मैं मेरा एक्सपीरियंस ये बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ड्रेन आउट हो चुका था तो मैंने फिर एंड यही गलती मैंने अपने दूसरे अटेम्प्ट में भी की कि यू नो सब बंद और तब मुझे समझा नहीं था ये सब चीजें थर्ड अटेम्प्ट में जाके ना मुझे ये चीज समझी कि यार मैं बहुत फालतूगिरी कर रहा था कि मैं बार बार ये चीजें यू नो ये एंड मेरे पेरेंट्स हमेशा ये बोलते थे इनफैक्ट माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि रौनक तुम ना पेपर्स लिखो लाइक तो मैंने ना फिर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लिया एंड मैं पेपर्स लिखने लगा तो माय बिगेस्ट लर्निंग वुड बी और लाइक टू ऑल ऑफ यू गाइस जो मैं लिंक्डइन पे भी मैंने एक बार लिखा था कि लोग बोलते जाते हैं लोग हर सबका ओपिनियन उनके पर्सपेक्टिव से सही होता है बिकॉज वो उन्होंने वो चीज फेस की है इट इज ऑन यू आपको खुद ही वो देखना है कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं अगर वो नहीं सही है ना तो यू शुड नॉट डू दैट एंड यू शुड कार्व योर ओन पाथ that would be my biggest learning or how would I document that learning would be this thing what was the second question okay sorry interesting journey of interviewing entrepreneurs यार ऐसा भी कुछ इतना याद नहीं है इंटरेस्टिंग जर्नी बट हाँ आई वुड से मैंने एक इंडिया टाइम्स करके ना एक फेसबुक पे आता था मेरे को नहीं पता आता है कि नहीं जैसे ब्रूट इंडिया है ना वैसे उस 2017 18 19 में इंडिया टाइम्स करके आता था तो उस टाइम पे ना एक पॉड होटल खोला था मुंबई में पॉड अंधेरी MIDC में आई डोंट नो अब है कि नहीं वो मैं बता रहा हूँ ये 2018 की बात आई गेस हाँ 2018 या 19 की बात है ठीक है
तो मैंने वो इंडिया टाइम्स के पेज पे देखा था कि ऐसा कुछ खुला है। मैंने सिर्फ वो पॉड होटल में मैसेज किया था एंड उन्होंने मेरे को उनके फाउंडर्स के साथ इंटरव्यू करने बुला लिया। एंड इट वाज माय, मतलब मेरा कोई पेज इतना कोई खास वो ज्यादा लाइक्स वाइक्स वाले थे नहीं। तो दैट वाज वन ऑफ माय इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड मतलब इट मेड मी कि हाँ कुछ कर सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो शिवानी ने पूछा था कॉन्फिडेंस, यही सब चीजों से कॉन्फिडेंस एक्चुअली आता था। तो मे बी आई वुड से दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज आई गॉट टू लर्न फ्रॉम देम अ लॉट। एंड हाँ, वन मोर थिंग लाइक मैंने ना SNDT कॉलेज में इन द ईयर 2019 मीडिया मंत्रा करके उनका जुहू पे जो SNDT है उनका कोई फ्लैगशिप इवेंट होता है। तो दे हैड कॉल्ड मी ओवर देयर to speak on social media and stuff like all these things. So that would be one of my very interesting or very touching moment for me. Really great, sir. It was a really touching moment when we heard it out. So, sir, like you had started Startup Tales, even we have started an initiative for CA students, an anthology which is named Education. So, sir, Okay. are you aware about it, and what is your perspective on it? What are your views on it? I'd really It like to is, know. yeah, I am aware about it and it is very good because उस समय मेरे पास टाइम लाइक देयर वाज नो प्लेटफॉर्म। अब आप लोग वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो, सो दैट इज एब्सोल्युटली वेरी गुड। एंड लाइक काफी सीए स्टूडेंट जैसे हम विकासा में भी है या जो डिफरेंट रीजनल काउंसिल्स का जो अपना है, काफी है जो सब में डिफरेंट क्वालिटीज है, सब में डिफरेंट एस्पेक्ट्स है एंड उसको आप लोग एक कोलेट करके कर रहे हो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग एंड इट विल डेफिनेटली मोटिवेट नॉट जस्ट अभी का जो बैच है, द फ्यूचर बैचेस टू। एंड यू आर एब्सोल्युटली डूइंग अ ग्रेट वर्क जो आप लोग का पूरा टीम बना है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम। आई वुड से इट्स रियली वेरी ग्रेट। Thank you, sir. Thank you so much for your words of appreciation for about our initiative. So, sir, I'd now like Shivani to take over. Okay, sir. So, sir, if your life had a tagline, so what would it be? Life would have been a tagline. Uh, Maybe go with the flow and improve yourself day by day. I would probably say this thing, हाँ कि यार धीरे धीरे improve होता है, तो I would say go with the flow. Competition तो हमेशा रहता है, तो go with the flow and improve yourself day by day, skill up yourself day by day. Okay, sir. So, my next question would be, what do you believe are the most crucial skills or areas of expertise that current CA students should prioritize developing to thrive in the next 5 to 10 years? It would be AI, and because Institute B, they are holding various courses on AI. And they are like AI and ICI. They had hold a summit also in the month of July in Pune. And Institute भी काफी उस पे focus कर रहे हैं. And if you do not adopt to it, you would be very redundant. I don't know कि how in the current CA का studies में how they are incorporating the AI or thing. I'm not very well aware on that part. The current curriculum which you guys have. But in future, even I am, I'm trying to learn different. I'm trying to do different courses on internet, and even I'm planning to do AI and ICI wala course also. So AI is that skill which is very most required because आगे चल के ना यही चीज होगा। आज आप लोग को भी लाइक आप लोग जब आपके सीनियर्स को मेल्स लिखते होगे, वो हम चैट जीपीटी या जेमिनाई से करके लिख देते हैं। बट आगे चल के इट्स नॉट जस्ट अबाउट चैट जीपीटी जेमिनाई। लाइक आज मेरी कलीग से बात हो रही थी यही चीज के बारे में कि इतना आगे बढ़ चुका है कि मेरे को तो आधी चीजें पता ही नहीं है। एंड
I am in a fintech company, ClearTax. So काफी चीजें हैं जो हम एआई के थ्रू हमारे इंजीनियर्स या लोग करते हैं. तो आई फील एआई इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू डू. एंड अगर लाइफ स्किल या कुछ पूछे तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, दैट विल बी द थिंग. Okay, sir. Thank you. And now I would like to conclude. On behalf of entire TWC team, I extend our heartfelt gratitude to CA Ronak Banka sir for such an enriching session. This talk has reminded us that as students, we are also to blend passion with purpose in the most beautiful way possible. The startup tales and sharing your wisdom as a writer and mentor, you truly brought multiple heads together today. Thank you for not just being a part of this event, but for becoming a part of our learning journey. Also, I am pleased to share with you that we would be providing you with a small token of gratitude once the anthology is published. Once again, thank you, sir, so much, sir, and this session will surely stay with us for a long time. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. एंड मतलब यू गाइस आर डूइंग वेरी ग्रेट. आई होप मेरा वो अच्छा था. मेरे को धैर्य ने एक्चुअली क्वेश्चंस भेजे थे. मैंने एक बार बस पढ़ा था जब उन्हें क्वेश्चंस भेजे थे. उसके बाद मैंने क्वेश्चंस पढ़े ही नहीं थे. So, one more question. Like, बोलो ना. how do you feel? How do you feel about the winner circle? यार यही मैंने बोला कि बहुत अच्छा है. लाइक बट यू नो वन थिंग आई वुड से कि आप लोग विनर सर्कल तो कर रहे हो, बट आप पढ़ाई में भी उतना ही फोकस करो. Yes. बिकॉज And sir, ये yes, सब sir, चीजें continue. चलती जाए. हाँ सॉरी, ये सब चीजें चलती जाएंगी, बट हमें मेन गोल इज टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट. तो आप सीए पे भी फोकस करते जाओ एंड ये भी करो. मतलब ये तो ऑफ कोर्स करो बिकॉज ये एक मतलब वो पैशन इग्नाइट होता है आपके अंदर, जोश होता है. तो ये सब चीजें तो करो ही, बट साथ साथ में पढ़ाई को बस निग्लेक्ट ना करो. आई वुड से दिस थिंग कि आप लोग ऐसा टाइम शेड्यूल बना दो कि यार मेरे को उतना पढ़ना ही है एंड फिर मैं ये चीज करूँ. सो मैं ये बोलूंगा. बट इट इज रियली लाइक फ्रॉम द फर्स्ट डे जब मेरे को धैर्य ने कॉन्सेप्ट बोला था एंथोलॉजी एंड ये सब, इट इज रियली वेरी. Sir, there is one more question in the chat section. If you were a CA student, would you be happy to contribute? Like you think this platform was needed? Platform was Needed, sir. The TWC. exactly, it was needed because क्या होता है ना, अभी काफी ये विकासा एंड ये सब जो हर रीजनल स्टडी सर्कल के हैं वो अभी आए हैं. एंड दीज थिंग्स आर वेरी नीडेड बिकॉज हम यही बोलते हैं ना कि सीए स्टूडेंट्स की कोई लाइफ नहीं है, बट आप लोग जो कर रहे हो दैट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. एंड लाइक आप लोग आगे चल के आप लोग के क्या गोल्स है ये करने के, मतलब लाइक क्या फ्यूचर प्लान. ऑफकोर्स एंथोलॉजी तो एक प्लान है ही, बट मे बी आप लोग का मीटअप हो सकता है कि आगे चल के ऐसे आप एक यू नो सीए स्टूडेंट्स को बुलाओ कि ये जगह पे मिलो एंड आप लोग मिल सकते हो. यू कैन कोलैबोरेट विद ईच अदर, नेटवर्क विद ईच अदर. सो यार ये सब चीजें हैं. तो आई फील इट इज अ वेरी मच नीडेड प्लेटफॉर्म. आप लोग यू नो ऐसे स्पोर्ट्स वोर्ट्स का भी कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हो. सो सीए स्टूडेंट्स को भी ना वो एक अट्रैक्शन होगा चीजों का. सो आई फील इट इज वेरी मच नीडेड एंड वेरी नाइस.